classified on the basis of Bohr's classification elements into 4 types. Inert gases, representative या normal elements, transition elements and inner transition elements. Right? ये हमने समझ लिया था. और इसके बाद में I taught you how to write IUPAC names, right, for super heavy elements, right? Yes, ma'am. Where we were. This is the last thing that I did with you all. So great. What next? अभी इसके आगे जो मुझे आपको सिखाना है, तो हमने periodic table को समझ लिया, elements को classify कर लिया. But what is the main thing? I have to show you periodicity in properties. Okay, इस table में how the properties are repeating in a periodic manner is the main thing that have to be taught to you. Okay, I have to connect how all the properties which are directly or indirectly depending on electronic configuration of the element. ये वाला पार्ट मुझे आपको सिखाना है और इसी के लिए इसको पीरियोडिक प्रॉपर्टी या पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी कहते हैं. ओके, तो हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि with the interval of 288, 18, 18, 32, similar properties are observed. Okay, with the elements belonging to same subgroup. तो same एलिमेंट जो होता है मतलब उसमें एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 288, 18, 18, 32 से होता है और इस डिफरेंस से जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है उसके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं. ओके, एंड दे आर क्लोजली लिंक्ड टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो ये सब अभी हम देखना स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट इज द टॉपिक दैट वी स्टार्ट विद नाउ? We are starting the main part in this chapter, periodicity in properties. और ये periodicity in properties जो मैं आपको सिखाने वाली हूँ, इसमें सबसे पहले before I go ahead and teach you any property, I want you to understand with the clarity screening effect or shading effect. The first thing that you will understand to understand periodic property is an effect called as screening effect or shading effect. मैम ये दोनों सेम इफेक्ट है क्या? ये दोनों सेम इफेक्ट है. हाँ बेटा, स्लैश करके लिखा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं. बोथ मीन्स सेम. तो व्हाट इज दिस? नाउ दिस इज समथिंग स्पेसिफिकली वी ऑब्जर्व इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम. तो ये किसमें नहीं है? हाइड्रोजन जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें ये इफेक्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा. बट इन ऑल द मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम you get this effect. Now what is the effect? To explain you this effect, I'm just representing a particular atom to you. ये उसका न्यूक्लियस है और सपोज उसमें 5 शेल है and the 5th shell is the valence shell. ये उसकी लास्ट शेल है. There are electrons present, okay, which are negatively charged, and inside the nucleus there is a proton, and which makes nucleus positively charged. तो atomic structure तो पूरा खत्म होने को है. So everybody in the class is aware of this electrostatic attraction which a nucleus has on the electrons. Okay, इसको हम nuclear charge कहते हैं. So electron experience an inward pull towards nucleus, and this is what is called as
effective nuclear charge या nuclear force. Now what is observed? Okay, if this nucleus, okay, is pulling the electrons towards itself, is that pull equally experienced by the all electrons present in the atom? No, ma'am. No. It is not equally expressed. This is the first thing that you have to understand. So which electrons are experiencing it maximum? The First first and second. First First and shell. second shell. मैक्सिमम इज फर्स्ट शेल बेटा, मैक्सिमम फर्स्ट शेल में होगा, उससे कम सेकेंड शेल में होगा, उससे भी कम थर्ड में होगा, उससे भी कम फोर्थ में होगा, उससे भी कम फिफ्थ में होगा. So as you start going away from the nucleus, this inward pull goes on decreasing. This is the first thing that you have to understand. So it is not experienced equally. It is maximum on that electron which is in the first shell. And as you go away from the nucleus, this pull goes on decreasing. ये कम होते चला जाता है. Then is it experienced first shell में भी? Is it experienced full? Now what is the meaning of full? Suppose I give you example. ये जो भी element है, इसका मैं एक atomic number ले लेती हूँ. Okay, let us understand with the atomic number so that we have some clarity. So this is having five shells. Suppose this is rubidium 37. तो rubidium 37 के न्यूक्लियस में 37 प्रोटॉन्स है, इसके न्यूक्लियस में प्लस 37 चार्ज है. So is the charge experienced by the electrons, is it plus 37? Is the entire charge of the nucleus, is it reaching even the first shell electron? Answer is no. Even the first shell electron is not receiving the full charge. Okay. तो ये जो न्यूक्लियर चार्ज है ये प्लस 37 है, बट जो इलेक्ट्रॉन को रीच होता है वो इससे कम ही होता है. और इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन को रीच होता है उस न्यूक्लियर चार्ज को we keep saying it as effective nuclear charge. So we keep calling it as effective nuclear charge, which is effectively reaching to a particular electron. And that is going to decrease as we go away from the nucleus. Now, what is the whole reason that it is decreasing as we go away from the nucleus? If I am talking about this valence shell electron, so between this valence shell electron and nucleus, there are electrons which are shielding, which are blocking the nuclear charge from reaching the valence shell electron. If I am talking about fourth shell electron, then 1, 2, 3, ये तीन shell में जो electrons है, they are blocking, they are shielding, they are screening the nuclear charge from reaching the fourth shell. Okay, ऐसे करके मैं first shell में भी आ जाती हूँ. तो क्या फर्स्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इज इट रिसीविंग फुल प्लस 37 न्यूक्लियर चार्ज? आंसर इज, क्योंकि फर्स्ट शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करता है, शील्ड करता है इन एक्सपीरियंसिंग द न्यूक्लियर चार्ज. So what nuclear charge experienced by electron is always less than what it actually has. और उस न्यूक्लियर चार्ज को फिर हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि रुबेडियम का न्यूक्लियर चार्ज तो प्लस 37 है, बट व्हाट इज रीचिंग टू अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन is not plus 37. So whatever is reaching to a particular electron is called as effective nuclear charge. अभी स्क्रीनिंग या शील्डिंग क्या है? The decrease in force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron is due to the presence of electrons in the inner shell. तो ये जो डिक्रीज होते चला जाता है न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम एक्सपीरियंस करते हैं, दिस इज ड्यू टू अ स्क्रीनिंग और अ ब्लॉकिंग बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इनर शेल, और इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं. सो आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन ऑन द बोर्ड. स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है
the decrease in force of attraction exerted by the nucleus on the valence electron due to the presence of electrons in the inner shell is called screening or shielding effect. तो ऑब्वियसली जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होंगे उतना स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा. हायर द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट. जैसे इनर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ते जाएगा. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. Higher is screening or shielding effect. Then another important thing that I have to teach you. So I was talking with respect to shells. और जितने इनर शेल बढ़ेंगे उतना स्क्रीनिंग बढ़ेगा. ये पॉइंट सबको समझ में आया. Now in atomic structure you have understood कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है. s orbital, p orbital, d orbital and f orbital, right? Yes, And ma'am. you have seen shapes of these orbitals also. Yes, ma'am. Okay, so what is experienced is कि अगर s orbital के इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ रहे, स्क्रीन कर रहे, p के कर रहे, d के कर रहे या f के कर रहे, तो इनसे जो स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस है वो इक्वल नहीं है. So equal kind of screening is not experienced based on the orbitals of electron, because you know the orbital shape is different. Yes, ma'am. Electron density present in orbitals are different. Yes. आपका most compressed is S. Ma'am. P is more diffuse. Yes, ma'am. D is still more diffuse. And F is still more diffuse, right? Yes. हर ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बट शेप वाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड होते चला जाता है. हाँ मैम. और उसके वजह से अगर s ऑर्बिटल है तो वो सबसे ज्यादा स्क्रीन करती है. Then is the screening by D, then is the screening by F. So this is what is the gradation in screening effect with respect to orbitals. Okay, ma'am. Okay, within a same shell. So this I am talking within a same shell.
तो अगर ये फोर्थ शेल है, इसमें sp है, इसमें pb है, इसमें db है और इसमें fb है, तो हाँ, क्या मैम। फिफ्थ शेल का जो इलेक्ट्रॉन है, all s p d and f electrons, are they screening equally to an electron present in fifth shell? Answer is no. Yeah. An electron present in s orbital is going to screen more. Then will be the p electron, then will be the d electron, and then will be the f electron. This is due to the shapes of the orbital. Is this point clear to you? Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा। मैम एफ और मतलब एफ सब शेल में जितने भी ऑर्बिटल है वो सेम ही मतलब शील्डिंग इफेक्ट करेंगे ना? एस के क्या बोल रहा है? नहीं, एफ के जितने भी ऑर्बिटल है ना तो फिर वो सेम ही शील्डिंग इफेक्ट करेंगे ना? वो कहाँ पे प्रेजेंट है उसमें भी तो होगा ना। एस के ऑर्बिटल मतलब एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, हर शेल में एस होगा। एक शेल में थोड़ी एक से ज्यादा एस होता है, एक शेल में एक ही एस होता है, इतना तो पता है ना बेटा। तो मैं एक शेल में जो अलग अलग ऑर्बिटल्स है वो कैसे स्क्रीन करते हैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू? ना अभी ये मैंने कंपैरेटिव हम बात कर रहे हैं, अब तक की जो भी बात थी वो कंपैरेटिव थी, विदाउट एनी मैग्नीट्यूड था, व्हिच इज सेइंग क्योंकि फोर्थ शेल इलेक्ट्रॉन अगर है तो इट विल बी स्क्रीन बाय फर्स्ट थ्री शेल इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन है तो विल बी स्क्रीन बाय फर्स्ट टू शेल इलेक्ट्रॉन। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू some calculations, and these calculations will help you understand and calculate a number for this screening, और जिसको हम कहते हैं screening effect constant. So we will learn calculation of screening effect constant. तो अभी हम जो सीख रहे हैं उसको कहते हैं screening effect constant. The screening effect constant is represented by sigma. इसको हम sigma से represent करते हैं और वो screening बताएगा on a particular electron. So I will teach you, I'll give you some rules जिससे fifth shell के किसी इलेक्ट्रॉन पे कितना screening experience हो रहा है इसके लिए एक नंबर कैलकुलेट होगा। फोर्थ शेल के इलेक्ट्रॉन पे कितना स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस हो रहा है इसके लिए भी एक नंबर कैलकुलेट होगा, और ऑब्वियसली ये दो नंबर अलग होंगे, और इससे क्योंकि ये नंबर है वी विल गेट सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड। हमको मैग्नीट्यूड की कोई आइडिया इससे मिल सकती है। Okay, Is that ma'am. clear to you? So Yes, I'll be ma'am. giving you some rules. Okay, और उन रूल्स से हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है वो समझेगा। Ma'am, So the magnitude of this sigma can be decided with the help of some rules. Okay, तो ये जो सिग्मा मैंने कहा इसकी मैग्नीट्यूड can be decided with the help of some rules. और इन रूल्स को नाम दिया गया है स्लेटर रूल्स। So I'll teach you what are Slater rules, and we will learn how to calculate magnitude of this sigma. इस सिग्मा की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हम सीख लेंगे। Is it clear till here? So please copy till here. I start teaching you Slater rule. मैम हाँ बोल बेटा। मैम वो जो आपने बोला कि वो फिफ्थ शेल पे कितना मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, तो मैम वो ऑर्बिटल वाइज होगा या तो नहीं पूरे फिफ्थ शेल पे इतना हो रहा है? ऑर्बिटल वाइज होगा ना बेटा, ऑर्बिटल से भी फर्क पड़ेगा, वो भी बताया ना मैंने। तो ऑर्बिटल वाइज कैलकुलेशन सिखाऊंगी। तो 5s का 5d से ज्यादा रहेगा? हाँ वो देखेंगे कैलकुलेट करके, वही तो देखेंगे अभी, है ना।
मैम हाँ बोलो। मैम ऑर्बिटल्स भी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे। बेटा ऑर्बिटल नहीं करता, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है हाँ वो मतलब करता है। ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन भी मतलब जैसे हाँ वही P- तो है, स्क्रीनिंग का मतलब इलेक्ट्रॉन ही स्क्रीन करते हैं। एस वाला इलेक्ट्रॉन पी के इलेक्ट्रॉन को मीन्स पी के इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेगा। हाँ बेटा, और पी वाला एस को भी करता है। पी ऐसे कैसे पी वाला एस को मतलब क्यों मैम? नहीं करेगा बेटा? अगर यहाँ पे पी वाला इलेक्ट्रॉन है, वो इधर के एस को स्क्रीन नहीं करेगा। यस मैम, ओके मैम, मैं सेम सेल की बात कर रहा था, सेम सेल। सेम शेल में भी करते हैं, बिकॉज दे आर मूविंग, थोड़ी ना वो कांस्टेंट है। तो सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स, रादर एस के भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, एस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो एस ऑर्बिटल के जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी स्क्रीन करता है। ओके मैम। Because while moving, there will be some time when it will come between the nucleus and that electron, isn't it? यस मैम। मैम एक So every electron basically can screen other, मैम एक irrespective ऑर्बिटल of में which orbital or which shell it is present in. Every electron can screen other electron present in the same orbit, present in the same orbital, and all the inner electrons are screening the outer electron. कौन स्क्रीन नहीं करेगा? अगर यहाँ पे एक सिक्स्थ शेल भी है और इस सिक्स्थ शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन नहीं करेगा, ये पक्का। तो जो इलेक्ट्रॉन गिवन शेल और न्यूक्लियस के बीच में है वो सारे स्क्रीन कर सकते हैं, उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी आपस में स्क्रीन कर सकते हैं, बट फोर्थ शेल को फिफ्थ शेल का इलेक्ट्रॉन स्क्रीन नहीं कर सकता, ये बेसिक। सो नाउ एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना? हाँ बेटा, नहीं पता ये? नहीं मतलब वो कंफ्यूज और ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में वो थोड़ा। ऑर्बिट इज अ शेल बेटा, मेन एनर्जी लेवल, जिसको अच्छा। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बताया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में। अच्छा और वो ऑर्बिटल जब भी हम कहते हैं तो वो सब एनर्जी लेवल है, ओके मैम। जिसको आपको एसपीडीएफ से सिखाया है ना? तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल अलग है। ऑर्बिट को आप शेल भी कह सकते हो। So I'm giving you Slater rule. We start understanding Slater rule now. अभी ये Slater rule जो है वो क्योंकि सब ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग एक जैसा नहीं है, so there are different set of Slater rules for electrons present in s and p orbital, and there are different set of Slater rules for electron present in d and f orbital. So I start teaching you Slater rule for ns and np orbital electrons. So we start understanding Slater rule. And first set of rules are for ns and np orbital electrons. तो अभी अंडरस्टैंड करते हैं ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्या रूल्स है। तो अभी इसमें सबसे पहला रूल ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे लिखना है, आपने सीख लिया विद द हेल्प ऑफ 3 रूल्स इन एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा, बट अभी जब हम कैलकुलेट करेंगे स्लेटर रूल से सिग्मा, तो वो कैलकुलेट करते वक्त we need to write the electronic configuration of the element in the following order, and we have to group them in a particular manner. So first rule says write the electronic configuration of the element
in the following order. So first group is your 1s electron, then is 2s and 2p, then is 3s, 3p, then is 3d, then is 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f and so on. तो आपको इस पैटर्न में ग्रुप करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. And when I'm writing in this sequence and this pattern, you understand I'm not following above principle. Yes, ma'am. But इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त above principle फॉलो करना. बट उसको स्लेटर रूल के लिए रिप्रेजेंट करते वक्त ये पैटर्न में उसको लिखना है. ठीक है. अभी सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं और कौन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते. अगर तो मुझे कुछ तय करना पड़ेगा मैं कौन से इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट कर रही हूँ. तो सपोज आई टेक अ एग्जांपल. आई एम कैलकुलेटिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट on this s electron present in the fourth shell. मुझे ये फोर्थ शेल में जो s ऑर्बिटल पे एक इलेक्ट्रॉन है उस पे जो स्क्रीनिंग है वो कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा. द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू द राइट आर नॉट इफेक्टिव इन shielding. So this is right. ये राइट and this is left. So which electrons are meaningless or will not contribute to screening or shielding? Which are present to the right. Right. Yes. What will contribute to shielding? Which Left. are present to the left. ये point समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो अभी इस ग्रुप में 4s इधर है तो इस ग्रुप के राइट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल नॉट कंट्रीब्यूट. बट इस ग्रुप के लेफ्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल कंट्रीब्यूट टू स्क्रीनिंग. Is Okay, this ma'am. clear to you? Yes, ma'am. Okay, so that is what is the second rule. मैम एक और बात Electrons- समझा. बेटा अगर मैं फोर्थ शेल के s इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रही हूँ तो स्क्रीनिंग इज going to experience due to electrons which are present from the nucleus till that particular electron. मतलब ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है वही स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करेंगे. तो वी से जो वो ऑर्बिटल होगी उसके लेफ्ट के इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं राइट वाले नहीं. यस मैम. We write this rule. Electrons to the right of NS-NP group are not effective in shielding, and the NS and NP electrons and contribute nothing to the sigma. मैम लेकिन 4p इफेक्टिव होगा ना. Yeah. नहीं होगा ना. 4p इफेक्टिव होगा या नहीं होगा. एक मिनट. Let me finish this writing, then ask me that. यस मैम.
क्या डाउट था? मैम 4p इफेक्टिव होगा क्या? अब 4p होगा ना, उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में स्ट्रिंग करेंगे ही। ओके मैम। 4s का मैंने शायद स्टार्ट से अब तक 4 बार बोल दिया है कि 4s में भी जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को स्क्रीन करेगा। 4p तो करेगा ही, 4s भी करेगा आपस में, बट वो छोड़ के 5th 6th 7th शेल के इलेक्ट्रॉन्स नहीं करेंगे। तो ये सेकेंड रूल समझ में आया? यस मैम। ओके, लेफ्ट राइट वाला पार्ट समझ में आया। अभी जैसे ये लोग पूछ रहे हैं तो वही मैं बता रही हूँ कि अगर मुझे 4th शेल के इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट करना है तो 4th शेल के इलेक्ट्रॉन का कुछ कंट्रीब्यूशन होगा और इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होगा। अभी इसके लिए कुछ नंबर्स फिक्स किए गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। दैट इज व्हाट इज अ स्लेटर रूल। तो अगर 4th शेल है तो all the other electrons in that 4th shell will contribute to the extent 0.35 each to the screening constant. तो 4th shell का जो contribution है उसके लिए कुछ नंबर तय होगा, 3rd shell के लिए कुछ नंबर फिक्स है, 2nd shell के लिए कुछ नंबर फिक्स है। ये सारे नंबर्स मैं अभी आपको देती हूँ। So the third rule says all the other electrons in NS and NP group contribute to the extent of 0.35 each to screening constant. कि किसी भी शेल में उस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स का जो आपस में स्क्रीनिंग होगा उसके लिए 0.35 नंबर कंसीडर करना है। बट अगर मैं फर्स्ट शेल के S इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो इसके लिए ये वैल्यू इंस्टेड ऑफ 0.35 0.30 होती है। So there is an exception to this rule. Except, बेटा be patient, rule लिख लो। जब भी मैं एक्चुअल कैलकुलेट करूंगी डाउट क्लियर हो जाएंगे। डाउट नहीं था, आप थोड़ा आपका कैमरा राइट में कर सकते हो, वो राइट के वर्ड्स थोड़े कट हो रहे हैं। हाँ बेटा कर रही। So I was telling कि instead of any other shell, if we are calculating for 1s तो बाकी सारे shells में ये contribution 0.35 मानना है, but only for 1s। तो 1s में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे जो स्क्रीनिंग है वो 0.30 है। तो अभी इस सब में ये n आ रहा है बार बार, ये n क्या है? When I write NS and NP group, तो अगर मैं 4th शेल इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रही हूँ तो N4 है, तो मेरे लिए NS और NP हो गया 4s and 4p ग्रुप। तो ये 4s और 4p ग्रुप में जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो अगर ये फुल शेल है
तो 4s2 है और 4p6 है, मैम और मैं 4s2 और 4p6 में से एक s इलेक्ट्रॉन पे बाकी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन काउंट कर रही हूँ। तो इस शेल में वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 of p and 1 of s. There are totally 7 electrons. So these 7 electrons are going to contribute 0.35 each. तो इस शेल के इलेक्ट्रॉन्स का जो स्क्रीनिंग के लिए कंट्रीब्यूशन है वो 7 into 0.35 है। Am I clear? यस मैम। मैम हाँ बोलो। मैम 4D और 4F नहीं करेंगे ना, 4S और 4P? बेटा मैंने राइट लेफ्ट पहले बोल दिया। यस तो मैम। 4D लेफ्ट में दिख रहा है तेरे को 4S और 4P के? नहीं मैम। तो फिर मैम पर 4S 4D और 4F भी सुनो सेम। सुनो मेरी बात, एक पर्टिकुलर पैटर्न में रूल 1 बता दिया आपको, एक पैटर्न में लिखना है। उस यस मैम। पैटर्न के राइट के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं गिनना है, ये रूल 1 था। यस मैम। तो रूल 1 समझ में आया, तो आगे चल के कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? पूरा एरो निकाल के दिखाया है राइट लेफ्ट। मैम तो 4s और 4p के राइट में जो भी होगा विल कंट्रीब्यूट 0, और कंट्रीब्यूशन सिर्फ लेफ्ट का गिनना है। नाउ लेट मी गो अहेड, बोलो बेटा। मैम एक बार थर्ड रूल समझा सकते हो? हाँ बेटा वही समझा रही हूँ, थर्ड रूल ही समझा रही हूँ कि उस शेल में जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका कंट्रीब्यूशन तुमको 0.35 ईच गिनना है। मैम अगर ये शेल, बेटा लेट मी कंप्लीट, ये शेल में, और ये सब समझ में आएगा द मिनट आई स्टार्ट वर्किंग। सो लेट मी फिनिश गिविंग यू रूल्स एंड लेट मी स्टार्ट वर्किंग। Let me solve a problem. Then you will understand how to use this rule instead of you and me theoretically discussing endlessly. So there are some numbers that I am giving. Just focus and understand these numbers. How to use them, I am solving. So I am just telling you what is the meaning of NS and NP. NS and NP means अगर 4 शेल इलेक्ट्रॉन है तो N4 है। And I was telling you कि अगर NS और NP में ये NS2 है, 4s2 है और 4p6 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जो रिमेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन होगा 7 into 0.35 towards screening. Now I'm going ahead. So I gave you the contribution of the electrons of this shell towards screening. And you know कि अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स भी स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, बट उनके लिए नंबर 0.35 नहीं है, वो 0.35 से ज्यादा है। सो द नेक्स्ट रूल सेज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन n-1th shell. So what is n-1? If n is 4, n-1 is 3. So the rule says all the electrons in n-1 shell contribute 0.85 each. The fourth rule is talking about electron present in n-1 shell. All electrons in n-1 shell contributes 0.85 each. तो यहाँ पे 4s 4p है, उसके n-1 में 3 आएगा based on whatever are the number of electrons here. अगर थर्ड शेल में 3s2 है, 3p6 है और 3d10 है, 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स इंडिविजुअली 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड स्क्रीनिंग हो जाएगा। अगर 18 इलेक्ट्रॉन्स है तो 18 into 0.85. Is this clear to you? तो हम थर्ड शेल तक आ गए। इसके आगे का रूल कहता है all the electrons in n-2. So if n is 4,
n minus 2 becomes 2. So all the electrons in n minus 2 shell and lower, मतलब n minus 2 और नीचे जितने भी shells होंगे, contribute 1 each to screening. So the fifth rule says all electrons present in n minus 2 shell and lower contributes 1 each to the screening constant. तो इसमें n हमेशा वो शेल रहेगी जिस शेल के इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हो. ये पूरा एग्जांपल मैंने 4s और 4p से आपको दिया. सपोज आप 5s और 5p पे कैलकुलेट कर रहे हो तो आपका n हो गया 5, आपका n minus 1 हो जाएगा 4, आपका n minus 2 एंड लोअर हो जाएगा 1 2 3. Is that clear? What is n? What is n minus 1 and what is n minus 2? तो अभी ये रूल क्लियर हो गए. Now we start solving and calculating the sigma so that you will understand. So I'm giving you first question. Calculation of screening constants, say of alkali metals for valence electrons. फोटो देख करेगा. कभी ध्यान दो, अगर मुझे लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे स्क्रीनिंग कैलकुलेट करना है, मैं वर्किंग दिखा रही हूँ, ध्यान दो. तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू राइट द लिथियम्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दिस पैटर्न. तो फिर लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहला ग्रुप 1s2 है, दूसरा ग्रुप 2s1 है. दैट्स इट. तो इसमें n क्या हो गया? n हो गया 2. And in the nth shell, do you see any other electron other than that जिसके ऊपर हम स्क्रीनिंग कैलकुलेट कर रहे हैं? You don't see? No, ma'am. No. Rule number 3, 0.35 contribution किसी का नहीं है. No. अगर ये 2s2 होता तो वो एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन पे 0.35 गिनना है, बट 2s में 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो रूल नंबर 3 नॉट एप्लीकेबल. इसमें n-1 शेल क्या है? ये फर्स्ट शेल. So this is where I actually start calculating.
there are 2 electrons in n-1 shell and which is contributing 0.85 each. And there is no n-2 and lower. So this No. is it. Okay, lithium का जो सीमा है वो 1.7 है. Did you got this? मैम वो रूल 3 एप्लीकेबल क्यों नहीं है? बेटा रूल 3 किसके लिए लिखा है देखो, all electrons in the ns and np shell, same shell. So do you see an electron in this shell? नो मैम. So there is no contribution coming. ओके मैम. इसका यूनिट नहीं होते. हाँ बेटा कोई यूनिट नहीं है. तो अभी मैंने लिथियम का कैलकुलेट करके बताया. आई वांट यू टू कैलकुलेट ऑफ ऑल अल्कली मेटल्स. स्टार्ट वर्किंग. सर मैम इनका कोई यूनिट नहीं.
तो सोडियम अगर हो गया होगा तो लेट अस चेक। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में होगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। थर्ड शेल से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। सेकेंड शेल में जो आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स है they will contribute 0.85 और n-2 हो जाएगा फर्स्ट शेल। तो फर्स्ट शेल के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंट्रीब्यूशन हुआ। So the total will be here 8.8. Everybody got this right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. $16.8 होगा। तो ये हो गया 8 into 0.85 and n-2 and lower 10 electrons are there. So this 10 electrons will contribute 1 each. Right, and the answer will be 16.8. So is everybody able to calculate and understood the rule now? Yes, ma'am. तो रुबेडियम का कॉन्फ़िगरेशन 34.8 होगा मैम। मैम हाँ बोलो। मैम वो लास्ट 1s मैम वो 1s2 n-3 होगा ना। हाँ तो n-3 होगा तो क्या हो गया? लोअर n-3 के कंट्रीब्यूशन लिए सुनो मेरी बात, ये जो भी पूछ रहा है बेटा, आपका नाम क्या है? क्या? सर्वेश। सर्वेश। तो बेटा n-3 के लिए अलग से रूल है क्या? अच्छा हाँ मैम समझे, लोअर कंट्रीब्यूशन। तो n-2 के नीचे जो भी है एक ही रूल है ना? यस मैम सॉरी। पता नहीं तो बार बार अननेसेसरीली क्यों कंफ्यूज होता है? और अभी इसके बाद में 3D10 पहले लिखना है। मैम लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? क्या बोल रहा है? Cesium. लास्ट वाला एलिमेंट क्या है? सीजियम बेटा। Cesium. तो ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया इस पैटर्न में। अभी कैलकुलेशन में आएगा n-1 के 8 इलेक्ट्रॉन्स, उनका कंट्रीब्यूशन 0.85 और n-2 और लोअर के 28 इलेक्ट्रॉन्स 28, राइट? तो ऑल दिस 28, दिस 10 plus 8 plus 10, 28 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 1 है। और फिर इसका आंसर आ जाएगा 34.8।
मैम एफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल में? इसमें एफ ऑर्बिटल में 14. 14। थैंक यू मैम। बट एफ आ ही नहीं रहा है इसमें किसी के कॉन्फ़िगरेशन में। मैम लास्ट वाले का 52.8 है। लास्ट वाले का क्या आया? 52.8। यस बेटा। फोर D10 5s2 5p6 6s2। ये हो गया। हाँ अभी इसमें हो जाएगा 8 into 0.85 प्लस 46 Plus 46. यस प्लस अंदर के सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग, तो वो 46 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके आफ्टर दिस 9, ओके सो 55 माइनस 9 करना है, वो हो जाएंगे 46 इलेक्ट्रॉन n-2 और लोअर में, और वो 46 इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 1 है, तो इसकी टोटल आपकी आ जाएगी 52.1। मैम 4F में नहीं जाएगा वो 6s वाला इलेक्ट्रॉन? 52.8 आ रहा है ना। 52.8 बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए अबाव रूल सिखाया है। तो 6s is having a lower energy level than 4f, isn't it? Yes ma'am. 4f will come after 6s. Yes ma'am. तो कॉन्फ़िगरेशन तो वही है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलना है, बस जिस पैटर्न में हम लिख रहे हैं वो पैटर्न बदलनी है। So everybody clear with this? अभी Yes, देखो ma'am. मैंने ये स्लेटर रूल आपको S और P इलेक्ट्रॉन पे सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए सिखाया। Now the next is for D and F electrons. So let us understand the rule for electrons present in D and F. मैम बोलो। मैम मतलब ये लोग तो अल्कली मेटल्स में भी बोल सकते हैं ना कि आप लोग इसमें 3s का फाइंड आउट करो, मतलब कोई बड़े वाले में जैसे रुबिडियम में। हाँ किसी भी एटम में किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। So we are learning Slater rule for D and F electrons. अभी D और F इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने अभी रूल नंबर 1, 2 और 3 बताया था, हाँ मैम। remain same. ओके। So rules 1, 2 and 3 remain same, but rule 4 and 5 will be replaced by rule 6. तो सबसे पहले ये समझना, rule 1,
2 and 3 remain same. But rule 4 and 5 get replaced by rule 6. तो रूल नंबर 1 क्या था कि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिखना है. रूल नंबर 2 क्या था कि जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन के लिए हम सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं उसके राइट वाले ग्रुप के एलिमेंट्स विल कंट्रीब्यूट 0 टू सिग्मा. Only the groups present at the left will keep contributing to sigma. और रूल नंबर 3 था कि जिस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स पे हम सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स का रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन 0.35 ईच होगा. हाँ या ना? यस मैम. ग्रेट. तो अभी बस मुझे रूल नंबर 6 देना है. तो रूल नंबर 6 कहता है all the electrons in the group lying on the left to NF and ND group contribute 1 each to screening. तो बस जो भी अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है all the electrons in the group lying to left contributes 1 each to screening. ये समझ में आया? तभी इसका भी कैलकुलेशन तो करेंगे हम. यस मैम. To calculate screening constant on 3D electron in copper. मैम 21.5.
No, sir. कितना आ रहा है बेटा? Ma'am, एक second. $21.15, ma'am. 21.15 कैसे आएगा? 38. तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, राइट? 21.15 भी आएगा। तो आपका कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन इस पैटर्न में जब ये आप लिखोगे कॉपर 29 है और आपको उसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन ही लिखना है। CD10 है वो और Yes, ma'am. 4s1 है। तो अभी 4s1 इलेक्ट्रॉन कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, राइट? Yes, ma'am. 4s1 इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट एनीथिंग। तो मैं कौन से इलेक्ट्रॉन पे कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रही हूँ? 3D. ओके, तो जब भी मैं रूल 3 अप्लाई करूंगी, हाँ तो मैम. रूल 3 जब भी हम अप्लाई करेंगे तो जो रिमेनिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स है उस ग्रुप उसका में चार्ज लगेगा उसका कितना लगेगा? 0.35. 0.35, right? So that will be 0.35 into 9. 9. तो पहला कैलकुलेशन होगा मेरा 9 into 0.35 हाँ मैम. और बाकी जो रिमेनिंग है, तो बाकी रिमेनिंग टू द लेफ्ट कितने हैं इस ग्रुप के लेफ्ट? 18. All the electrons lying to the left of NDNF, these is to the left of NDNF are 18. They will contribute 1. ये हो जाएगा 21.15. Yes मैम, 21.1. तो ये समझ में आ रहा है सबको? तो अभी मैं और एक प्रॉब्लम दे रही हूँ यहाँ पे। हम वो 9 Hello? into 3.5 क्यों है? 0.35. रूल नंबर 3 बेटा क्या है देख, जो रिमेन सेम है कहा मैंने। तो रूल नंबर 3 हो जाएगा ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन NDNF ग्रुप कंट्रीब्यूट टू द एक्सटेंट 0.35 ईच। तो उस ग्रुप के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस एक इलेक्ट्रॉन पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 9 इलेक्ट्रॉन्स का रहेगा। अरे ओके. हम लोग जैसे NS और NP में 0.85 लगता था, इसमें 0.35. नहीं बेटा, फिर से देखो, NS और NP में भी 0.35 ही लगता था। रूल नंबर 3 तो NS और NP वाला ही है। अच्छा, मैंने उसको गलती से 8.85 लिखा। तो गलती से 85 लिखा, तो सारे पहले कैलकुलेशन कैसे सही किए? वहां पे 0.85 रूल नंबर 4 में आता है, यहाँ पे रूल नंबर 4 और 5 रिप्लेस किया है हमने।
start calculating this. तो सेकेंड पीरियड, अभी एक ग्रुप देख लिया, एक पीरियड देखते हैं। तो जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आप स्क्रीनिंग कैलकुलेट करो।
मैम हो गया। हेलो मैम। मैम हाँ बोलो ना, हो गया मैम। सबका हो गया? हाँ मैम सबका हो गया। चलो आंसर डिस्कस करते हैं। अरे ओके मैम मैम। सबका मतलब उसका सब हो गया, हमारा नहीं हुआ मैम। हाँ तो Sorry. रुको फिर। ऐसे ही बोल रहा है क्या सर? सॉरी ब्रो। तो लिथियम का तो सबका हो गया होगा, हाँ मैम। और वो तो वही रहेगा जैसा ना कैलकुलेट। हाँ मैम 1.7 ही रहेगा। मैम बेरिलियम का 2.05। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो डिफरेंस है वो 0.35 का रहेगा। हाँ मिस। सेम स्टेप में हाँ मैम। इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। मैम सब में 0.35 ऐड करते जाना मैम। हाँ बस। बहुत ही। मैम इसका 3.1 है। हाँ बेटा। वन एस टू। So everybody clear? यस मैम। यस मैम। कोई किसी को दिक्कत है? नो। तो अभी मैंने एक ग्रुप आपको दिखाया और मैंने एक पीरियड भी आपको दिखाया. What do you see? The magnitude of screening constant.
Increasing by in case of S and P block elements, increases in a period as well as in a group as atomic number increases. Right? Can I conclude this? मैम रिपीट कर सकते हो आप? Right? Screening constant की magnitude जो होगी S block और P block के लिए, that is increasing in a period as well as in a group हाँ मैम. as your atomic number increases. Yes मैम. Right? Everybody understood? तो ये लिख लो. राइट? ये हमने वर्किंग करके कंफर्म किया. Yes मैम. और electrons in a different orbitals are differently affected by the same nuclear charge. Right? जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उस पे उसका न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है. यहाँ तक क्लियर सबको? दोनों पॉइंट सबको समझ में आए? अभी देखो ये सिग्मा का यूज क्या है. ये जो हमने सिग्मा पढ़ा है ये हम कहाँ पे यूज करेंगे? With the help of this sigma, now we can clearly understand effective nuclear charge.
So I am introducing you now to a concept of effective nuclear charge. इसकी भी हम magnitude calculate करेंगे with the help of sigma. So initially I made you understood that nuclear charge is, actual nuclear charge is due to the number of protons present in the nucleus. But that is not what is effectively reaching on an electron. तो न्यूक्लियर चार्ज अलग है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अलग है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is actual charge experienced by electron due to screening. मैम तो ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम Z स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं. So due to the screening effect, the valency electrons are experiencing less attraction towards nucleus, and due to this, there is a decrease in actual nuclear charge experienced by the electron. और जो experience होता है actually, उसी को हम कहते हैं effective nuclear charge. How do I calculate effective nuclear charge? A simple formula. Your effective nuclear charge is your actual nuclear charge minus sigma. So this is the formula to calculate effective nuclear charge. इसमें Z is actual nuclear charge and sigma is screening constant. तो अभी हम ये कैलकुलेट करके देखेंगे. So I will first calculate for you in a period. एक पीरियड के लिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. तो अभी सेकेंड पीरियड का डेटा अभी हमारे पास रेडी है. So I'm utilizing that. So these are my second period elements, and what is the actual nuclear charge equals to number of protons present in the nucleus. This is the actual nuclear charge. फिर सबका सिग्मा हमने कैलकुलेट कर लिया अभी. ये सबका सिग्मा हमने कैलकुलेट करके रख लिया है. अभी Z स्टार कैलकुलेट करना है. So I gave you the formula to calculate Z star. Your Z star is Z minus sigma. तो लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज रीचिंग इज 1.3. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 1.3 है, एक्चुअल चार्ज 3 है. So your effective nuclear charge is always less than actual charge, and the reason is screening. Yes, ma'am. तो आप सब केस में यही देख सकते हो कि कैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है ड्यू टू स्क्रीनिंग. एंड नाउ वी आर not speaking relatively, we actually have the numbers to compare. So what do I say? What do I conclude?
The magnitude of effective nuclear charge increases in a period when we move from left to right. अभी एक ग्रुप के लिए कैलकुलेशन करता है अल्कली मेटल का और एक ग्रुप का कंक्लूजन निकालेंगे. And you can try for other groups at home. So we have a data of sigma. We have calculated sigma. So you can check that. $34.8. और लास्ट कितना आ रहा था? 52.8. ओके. अभी Z स्टार करो कैलकुलेट. $2.2 constant. Yes. So what is the meaning of this? This is a subgroup of a normal element. The magnitude of effective nuclear charge remains almost the same. So nuclear charge इस group में when I am going from top to bottom is constant. मैम आपका कैमरा थोड़ा मतलब लेफ्ट में करो ना. हाँ बेटा.
So we understood what is the variation of effective nuclear charge in a period and in a group. In a period, as we move from left to right, effective nuclear charge is increasing. And in a group, when we go top to bottom, but specifically which group I am looking at? Normal elements group. So normal element के group में, when you are moving from top to bottom, your effective nuclear charge is remaining constant. Okay, ma'am. All clear till here? Yes, ma'am. Great. So today we finish screening. समझ लिया हमने, और screening से हमने effective nuclear charge समझ लिया. Now what is the next discussion? I will start discussing with you atomic size and atomic radius. Okay, so my next discussion that begins with you is atomic radius. So let us understand what is this concept of atomic radius. आज obviously introduction ही कर पाऊंगी, main हम अगले lecture में करेंगे. मैम एटॉमिक क्या बोला आपने? रेडिएशन. Radius and size. Yes. Radius. ओके, थैंक यू. तो एटॉमिक रेडियस का क्या मतलब है? तो we are assuming atom to be spherical in shape Yes, ma'am. and the size of the atom is generally given in terms of its radius of a sphere and is called atomic radius. तो अगर रेडियस ज्यादा है तो ऑब्वियसली उस एटम का साइज भी क्या होगा? ज्यादा होगा. हाँ, ma'am. So we will connect atomic radius to atomic size. Now how do we define atomic radius? The distance between the center of the nucleus and outermost shell where the electrons are present. तो जो definition है atomic radius का, वो है distance between the nucleus and outermost shell where the electrons are present. इस डिस्टेंस ma'am. को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस. अभी there are some difficulties in measuring atomic radius, so I'm explaining you that. तो आपको पहला पॉइंट समझाने के लिए I'm just making you understand your Heisenberg's uncertainty principle. Can I pinpoint the position of electron? Is it possible? No, ma'am. No. No. So I can say that the atom does not have a well-defined boundary. Yes, ma'am. The probability of finding electron is never zero, even Yes. at a larger distance from the nucleus. Yes, ma'am. Yes. And because it is not having a well-defined boundary, it is difficult to precisely know the radius. तो पहला point होगा, atom does not have well-defined boundary, and you know the reason behind this.
अभी सेकेंड डिफिकल्टी समझते हैं. व्हाट इज द सेकेंड डिफिकल्टी? कैन आई आइसोलेट वन एटम? एक No. एटम को अलग निकालना क्या पॉसिबल है? No, ma'am. No. तो जो भी एटम है, इट इज सराउंडेड बाय सम एटम्स, Yes, ma'am. and whenever it is surrounded by other atoms, the electron density around an atom affected by the presence of neighboring atom. Yes, ma'am. So attractive forces, repulsive forces are set in when atoms are closer to each other. तो पहले तो हम एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी साइज वेरी वेरी स्मॉल है, राइट? द साइज ऑफ द एटम इज एस्टिमेटेड इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻10 meters, and always when it Yes, ma'am. is surrounded by other atoms, its electron cloud is affected. Yes. The size of the atom is going to change. Okay, on the Yes, basis ma'am. of what is around it. Okay, ma'am. है ना, उसके अराउंड क्या है, इसके बेसिस पे उसकी साइज अफेक्ट होती है. Yes, ये ma'am. सेकेंड डिफिकल्टी है. तो उसकी साइज कांस्टेंट नहीं होती, वही ना मैम? हाँ, तो पहला डिफिकल्टी मैंने बता दिया. दूसरा डिफिकल्टी ये है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट एन एटम, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेबरिंग एटम. And third, size is very small. एटम की जो साइज है वो बहुत छोटी है. साइज ऑफ द एटम इज वेरी स्मॉल, in the order of 10⁻⁻10 meters. So to measure something more smaller than that, अगर साइज अगर इतनी छोटी है तो रेडियस और कम हो गई ना? हाँ मैम. Yes, ma'am. The size of atom is very small, in the range of 10⁻⁻10 meters. So to estimate something this tiny, it is always difficult. Yes, ma'am. So that's the reason we are unable to measure atomic radius. क्योंकि वो बहुत छोटा है, हम एटॉमिक रेडियस को मेजर नहीं कर पाते. बट फिर हम क्या करते हैं? ओके, वी एस्टिमेट द साइज ऑफ द एटम बाय मेजरिंग बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ क्या हो गया? डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स. सो डिस्टेंस जो है एक्चुअली टू एस्टिमेट द साइज ऑफ द एटम, तो ये डिफिकल्टी है. और इसके लिए हम क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ मेजर करते हैं जो रेडियस से बड़ा है. एंड फॉर दैट ऑल्सो वी नीड टू यूज द इंस्ट्रूमेंट्स. So bond lengths are measured by using X-ray diffraction technique or NMR. तो मैम उसके बिना तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं ना कि नहीं एटॉमिक कर सकते. So जो भी डेटा है वो ये डेटा है.
ऐसा कैलकुलेट किया हुआ डेटा है। कैसे कैलकुलेट करना है, सारा कैलकुलेशन अगले लेक्चर समझा दूंगी, बट ये पूरा कैलकुलेशन जो हम करते हैं बाय यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है मेजर्ड बाय आइदर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड या IR मेथड, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये अलग अलग हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स है हाँ मैम। जिनसे हम बॉन्ड लेंथ मेजर करेंगे। तो ना तो और कैमरा फिर मैं अगले लेक्चर समझाऊंगी कि ये बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करना है, बॉन्ड लेंथ मेजर करके रेडियस तक कैसे पहुंचना है, रेडियस से साइज कैसे मिलेगा, ये सब Yes, डिस्कस ma'am. होगा। मैम थोड़ा राइट में करो ना कैमरा। अच्छा कैमरा उधर करो, ओके। बट अभी फिलहाल इतना समझ लो कि रेडियस मेजर डायरेक्टली नहीं हो सकता। एवरीबडी अंडरस्टैंड, रेडियस से बड़ा तो बॉन्ड लेंथ है। मैम वो बॉन्ड लेंथ है ना? हाँ बॉन्ड लेंथ है बेटा। अभी बॉन्ड लेंथ का भी एग्जैक्ट मतलब क्या है ये भी समझा दूंगी। So all this we discuss in the next lecture. Yes, ma'am. Measurement of bond length, from that calculation of radius, and then how the atomic radius will vary in a period, in a group, in S block, P block, D block, F block. ये सब समझेंगे। एटॉमिक रेडियस समझेंगे, आयोनिक रेडियस समझेंगे और इसके बेसिस पे प्रॉपर्टीज। मैम हाँ Yes, बोलो ना। मैम एक डाउट है। हाँ सर्वेश है ना ये? सर्वेश 1 मिनट रुकना मैम, थोड़ा राइट में करो ना। और सर्वेश को भी मैं आवाज से पहचानने लगी हूँ। बोल सर्वेश। मैम थोड़ा मैम राइट में वो वैलेंसी मतलब फाइंड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, मतलब थर्ड शेल। मैम थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है तेरे को? वैलेंसी क्या? वैलेंसी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अरे वैलेंसी सुन पहली बात, वैलेंसी एलिमेंट का होता है। वही एलिमेंट का वैलेंसी। कौन से एलिमेंट का वैलेंसी फाइंड करने में दिक्कत होती है, नाम बता। मैम पोटेशियम। तो पोटेशियम की वैलेंसी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that potassium is giving or losing or sharing when it forms a compound. पोटेशियम फोर्थ शेल में है। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख ले। लास्ट में 4s1 आता है। हाँ तो पोटेशियम हमेशा जब भी रिएक्ट करता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। हाँ मैम। तो पोटेशियम की वैलेंसी हो गई 1। और वैलेंसी कुछ डिस्कशन ही नहीं हो रहा है, तो वैलेंसी क्यों सोच रहा है? I mean nowhere right now in periodic or nowhere in atomic valency discussion is going on, right? तो वैलेंसी चाहिए क्यों अभी तेरे को? मुझे लगा आगे है। किधर मतलब वैलेंसी की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं। ओके। Valence electron is something else. Valency is something else. Valence shell is something else. Not same beta. ओके। सब सेम नहीं है। तो मैं जब भी वैलेंस शेल कहती हूँ तो वो लास्ट शेल है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट शेल होता है। और वैलेंसी जब भी तू कहेगा तभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन फ्रॉम दैट लास्ट शेल होता है। तीनों चीजें अलग है और इसमें से किसी का भी हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ओके क्लियर?
Yes, ma'am. Chalo, that's it for today. Anyone has any doubt in what I'm teaching you right now? No, ma'am. जो सिखा रही हूँ उसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं मैम. So great, then that's it for today. Thank you, ma'am. you, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Take care. Thank you, See ma'am. at Bye, the ma'am. Next lecture. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Have a good Continues. day, ma'am. Thank you, Yes, ma'am. good day, beta. Thank you so much. Bye, ma'am. Have a nice Bye, bye. Take care, beta.